Good morning, everyone. I hope you are getting my voice properly. Yes. Okay. Uh, so we will start with our lecture. I guess screen is also visible to you all. Just let me. Okay, I hope so now. Screen is also properly visible to you all. Okay, if you remember, in last lecture, we have started with some of the topics. Just let me show you whatever we have started. So we have started with the chapter number 2, that is about the anatomy of computers. Just give me quickly confirmation that your screen is visible. Yes, and my voice is also clear to you all. Just quickly give me the confirmation. ठीक है चलो. Some problem is there, I guess, with the screen. One minute. Still, some students are joining. How? Okay. In last lecture, we have started with some of the important components of a computer. That is the chapter number 2, Anatomy of Computers. We have started, in which we have seen some of the components such as clock speed क्या होता है, slots क्या होते हैं, fan, then multimedia extensions, BIOS क्या होता है, CMOS क्या है. Then we have seen some of the ports and connectors also. Let me show you that part. Yes, this particular thing also we have seen. थोड़ा सा इसको और कम कर देता हूँ so that आप देख सको इसको. Okay, so ports and connectors we have seen. Then we have seen some of the interfaces, cards, USB connector. Yes.
as you can see, cache memory, virtual memory, sound card, color card. So these many things we have seen till now. Now today we are going to start with the input devices. Two types of devices we are going to start. So for that reason, just let me go to the PPT. So वहाँ से हम लोग करेंगे. So input devices, yes. So this particular part we will do today. We will see some of the input and output devices. Now basically these particular things you all know. Okay, what exactly a device is, what exactly इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये सब आपको मालूम है. बट स्टिल from syllabus point of view we need to complete this particular part. So okay, so the first part is what is device. Now it can be defined as the component or peripherals which are attached to the computer to enter the data and get the desired result. So this is the definition of device. Okay, I am repeating once again. Please read it carefully. It is very simple. So we all know input and output devices. ये जो devices है, ये devices computers को attach किए जाते हैं. क्यों? तो obviously input मतलब input देने के लिए, and input देने के बाद CPU उसको process करेगा, and as per the processing, as per the requirement, you will get the output. सो आउटपुट मिलने के लिए, आउटपुट देखने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए वी नीड सम डिवाइस. So for input as well as for output we need some external peripherals or devices, and those particular peripherals and devices are known as input and output devices. So keep in mind this is the definition for a device. So it can be defined as the components or peripherals which are attached to the computer to enter the data and get the desired result. Okay, now the next one is अब उसके examples दिए तो वही examples हम लोग आगे देखेंगे. Now basically devices are divided into two parts. As you can see, types of devices. Input devices are there as well as output devices are there. Now quickly we will check कि कौन से input devices है एंड इनपुट डिवाइसेस का यूज क्या होता है. तो बेसिकली एज अ नेम सजेस्ट इनपुट डिवाइस. सो इनपुट डिवाइसेस का मीनिंग क्या होगा. सो दीज टाइप ऑफ डिवाइसेस विल बी यूज टू एंटर द डेटा और टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. सो दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ इनपुट डिवाइस और बेसिक एम ऑफ द इनपुट डिवाइस. नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो आपको बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस दिखते रहेंगे. सो वहाँ पे कीबोर्ड इज देयर, देन mouse is there, joystick is there, trackball is there. तो बहुत सारे ऐसे input devices are available. So we will see now explanation of one by one. We'll start with the first one. As you can see, multiple input devices are there. So some of the pointing devices, keyboards, optical input devices, audio input devices are also there, video input devices are there. So these are all categorized as input devices. Now सबसे पहला है that is about the pointing device or sometimes called as the pointing tool. So it is a hardware input device that allows the user to move the mouse cursor in a computer program or operating system. So it is like a mouse only, ज़्यादा कुछ difference नहीं है. इट इज लाइक बट इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. ये माउस और ये इसको कर्सर को मूव करने के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई अब ये कर्सर मूव करने के लिए कर्सर का यूज क्या होता है सबको मालूम है. सो टू सिलेक्ट समथिंग, दैट मीन्स अब सिलेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स वी आर गिविंग सम इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर. सो दैट इज द केस. ये जो डिवाइस है इससे भी आप क्या करते हो, आप व्हाट वी कैन कॉल इट एज इंस्ट्रक्शंस या डेटा पास करने के लिए ही आप ये डिवाइस यूज कर सकते हैं. नाउ इसका सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हो. दैट इज अपने लैपटॉप पे देखो हम लोग माउस नहीं यूज करते. इफ यू वांट टू यूज अ माउस आप एक्सटर्नल माउस यूज करते हो, बट ऑन लैपटॉप माउस यूज करने के लिए एक एरिया होता है देखो,
एंड दैट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज दैट इज पॉइंटिंग एरिया, जहाँ पे पॉइंटिंग टूल जैसे होता है वहाँ पे वी यूज टू that is move the that particular cursor with the help of that particular tool. So that is the pointing device. Now you can see types of pointing device बहुत सारे हैं. That is mouse is there, joystick is there, touchpad, yes we use that touchpad, then light pen. So these are some of the types of pointing device. मतलब इनपुट डिवाइस के अंदर जो पॉइंटिंग डिवाइस का टाइप दिया है उसके अंदर माउस, जॉयस्टिक, टच पैड एंड लाइट पेन, तो ये अलग अलग टाइप्स इसमें आते हैं. नाउ द फर्स्ट वन दैट इज अबाउट द माउस. नाउ बेसिकली माउस इट इज एन इनपुट डिवाइस. नाउ इट इज जनरली यूज फॉर GUI, that is graphical user interface. Okay, so that is the communication with the computer with the help of graphs or picture. So for that reason we use mouse. Now different types of mouse are available in market right now. So some of the types they have also given, as you can see, mechanical mouse जो बहुत पुराना वाला mouse है. So this kind of mouse is what we generally have at home. तो घर पे जो हम लोग यूज करते हैं, आप देख सकते हो फर्स्ट डायग्राम जो दिख रहा है उसमें दिखाया गया है. कौन सा? नीचे वाले जो 3 डायग्राम है ना, उसमें से फर्स्ट वाला बोल रहा हूँ मैं. सो उसमें आपने देखा रहेगा. सो इन सच टाइप ऑफ माउस यू मे हैव नोटिस कि उसके नीचे ना एक बॉटम में एक बॉल होता है छोटा, एंड वो जो बॉल जो होता है उसी के थ्रू आपका कर्सर का मूवमेंट डिपेंडेंट होता है. तो जैसे आप माउस ये करोगे, माउस मूव करोगे, उसी के जैसा वो जो बॉल जो है वो भी मूव करेगा एंड आपका कर्सर का भी मूवमेंट होगा. ओके, सेकेंड वन जो दिखाया है आप देख सकते हो, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल माउस, जहाँ पे लाइट आपको रेड लाइट करके कुछ दिख रहा है. सो ऑप्टिकल माउस, सो एज अ नेम सजेस्ट, दिस माउस यूजेस लाइट बीम इंस्टेड ऑफ बॉल टू डिटेक्ट द मूवमेंट्स ऑफ द माउस. सो यहाँ पे अभी वो बॉल की जगह पे हम लोग लाइट रेजर का यूज करते हैं. देन नेक्स्ट वन इज some of the wireless mouses are also available and आजकल के ज़माने में वो भी बहुत यूज़ किया जाता है. So serial mouse is there, which is connected to the serial port. USB mouse is there, which is connected to USB port. It is also called as a bus mouse. Cordless mouse. So this mouse works with a wireless technology. So these are some of the different types of mouse are available. Now as you can see on the screen, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, आप लिख के ले सकते हो चाहिए तो. सो माउस वाज इन्वेंटेड इन दैट इज ड्यूरिंग 1960s. ओके, ये आपके सिलेबस में तो है नहीं, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन. आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप यूज कर सकते हो. सो इट वाज इन्वेंटेड बाय डगलस एंगलबर्ट, तो इन 1960. तो ये एक लाइन आप याद रख सकते हो. ओके, नाउ जस्ट लेट मी टॉक अबाउट द कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड तो आपने देखा ही है सबने. ओके, जस्ट वी विल फर्स्ट कंप्लीट आउट दिस पर्टिकुलर पार्ट. यस, माउस का माउस में कीप इन माइंड टाइप्स ऑफ माउस आर द इम्पोर्टेंट पार्ट. 4 या 5 टाइप्स है. उसमें से सबसे पहला मैकेनिकल आता है, उसके बाद ऑप्टिकल आता है, एंड देन आज के ज़माने में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो माउसेस आते हैं. ओके, now next one is about the keyboard. Now as you can see, keyboard it was invented by Christopher Latham Souls. Now keyboard is a human interface device which is represented as a layout of button or keys. अब ये सबको मालूम है कीबोर्ड का यूज क्या है. सो दिस इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी इनपुट डिवाइस ऑफ ऑल. क्योंकि ये नहीं रहेगा, कीबोर्ड नहीं रहेगा तो नो वन कैन डू एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर. सो इट इज मस्ट विथ एवरी कंप्यूटर, होना ही चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस. नाउ बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. ओके, अब इसमें एक पार्ट आता है कि उसमें फंक्शन कीज होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द कीज ऑन द कीबोर्ड. ओके, सो आपने कीबोर्ड कभी देखा रहेगा तो आपको मालूम रहेगा. सो ऊपर के हिस्से में वहां पे ना एफ से कुछ कीज रहते हैं. आई गेस 12 कीज आर देयर, दैट इज नोन एज द फंक्शन कीज. देन
सम ऑफ द कीज ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे, न्यूमरिक कीज कीपैड होता है, नम पैड बोलते हैं उसको, ठीक है। जहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आपको दिखाई दे रहा है छोटे से डायग्राम में, तो जहाँ पे नंबर्स होते हैं एंड एक एंटर का बटन होता है, प्लस माइनस का सिंबल होता है, so that is known as a numeric key. And major part जो होता है कीबोर्ड का, that was filled with the अल्फा न्यूमरिक कीज, जहाँ पे नंबर्स भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं, एंड सम ऑफ द अदर कीज आर देयर सच एज टैब, कैपिटल लेटर्स के लिए कैप्स लॉक, शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल, डिलीट, एंटर एंड सो ऑन, बैक स्पेसेस एंड सो ऑन, स्पेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो ऐसे बहुत सारे कीज होते हैं। सो दैट पर्टिकुलर थिंग, आई गेस आपने ये सब बचपन में भी सुना है, सीखा है, सब कुछ किया है, बट स्टिल as per the syllabus we need to complete this particular part, and that's why we are saying this. So अब तक हमने दो किए important devices, that is keyboard and mouse. Now next one is that is about the optical devices. Now just before going to that optical devices and so on, अब वहाँ पे जाने से पहले कुछ और भी डिवाइसेस है, पर्टिकुलर डिवाइसेस वी विल सी। एक आता है दैट इज अबाउट ट्रैक बॉल, जस्ट लेट मी चेक दे हैव गिवन इट और नॉट। No, they haven't given it. So trackball, so trackball is basically a input device, which is basically a pointing device that works like a upside down mouse, मतलब माउस के जैसा ही काम करता है। So generally it is used with the laptops. तो लैपटॉप में मोस्टली इसका यूज किया जाता है। One more input device is there that is known as a light pen. Just I will show you how many devices we are going to talk about. So क्योंकि आपके सिलेबस में आपको उतने सारे डिवाइसेस दिए, तो वी नीड टू टॉक अबाउट ऑल दीज डिवाइसेस। सो यू कैन सी कीबोर्ड इज देयर, माउस इज देयर, ट्रैक बॉल is there, then light pen. So it is a pointing device, basically used to select an option on the screen by simply pointing on it. So ये लाइट पेन ना एक लाइट छोड़ता है, एंड इट इज जस्ट लाइक कि वो लाइट उसके ऊपर आपने ये किया ना तो वो सिलेक्ट होता है। So it is basically used to select an option. Okay, so it is also used to draw some figures directly on the screen. So that is known as a light pin. Okay, next one is joystick. अब ये joystick तो आई गेस सबको मालूम रहेगा, बेसिकली जो गेम लवर्स है, जो गेम खेलते हैं उनको मालूम रहेगा। तो मूवमेंट करने के लिए, गेम खेलते वक्त जो गेम में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मूव करने के लिए, द डिवाइस विच इज रिक्वायर्ड, that is known as a joystick. So it is also considered as a input device, and they are mostly used for the game programs. Okay, next one that is about the touch screen. अब ये टच स्क्रीन के बारे में क्या ही बताए, सबको मालूम है, हम लोग आजकल मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, है ना। सबका मोबाइल फोन टच स्क्रीन ही है। दैट मीन्स यू ऑल नो एंड वी ऑल आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर इनपुट डिवाइस। सो यू कैन सी इट इज अ स्क्रीन which allows the user to select the task by simply touching the screen, and hence आप टच करके कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हो, दैट्स व्हाई द स्क्रीन इटसेल्फ विल एक्ट एज अ इनपुट डिवाइस, एंड दैट इज नोन एज अ टच स्क्रीन। सो आजकल के ज़माने तो सब जगह पे टच स्क्रीन ही हो रहा है। अभी मोबाइल फ़ोन स्मार्ट होने के बाद, स्मार्टफोन्स आने के बाद तो सब टच स्क्रीन तो है ही, बट नाउ इवन ऑल्सो बहुत सारे अलग अलग जो डिवाइसेस है, देखो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स जो है वो भी पहले इतना टच स्क्रीन नहीं आते थे, बट आजकल मार्केट में जाओगे तो आपको टच स्क्रीन मॉनिटर्स मिलेंगे। ओके, नाउ डेज इवन आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है तो एग्जाम्पल से ही बात कर सकता हूँ मैं। यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस, रेलवे टिकट जब निकालने जाते हो तो वहाँ पे जो मशीन होता है उसका मॉनिटर, दैट इज टच स्क्रीन वाला मॉनिटर। आजकल एटीएम मशीन्स में भी स्क्रीन जो होता है टच स्क्रीन। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे एप्लीकेशंस में टच स्क्रीन का यूज करना स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो कीप इन माइंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनपुट एंड आउटपुट भी बोल सकते हो, क्योंकि उसी स्क्रीन का यूज करके आप आउटपुट देखते हो, उसी स्क्रीन का यूज करके आप इनपुट देते हो। सो बेसिकली इट इज अ इनपुट एंड आउटपुट, बोथ टाइप ऑफ डिवाइसेस। ओके, नाउ यहाँ पे जो वर्किंग जो है, ये वर्किंग कैसे होता है टच स्क्रीन का। सो यहाँ पे टू मोर टेक्नोलॉजीज दे यूज फॉर टच स्क्रीन। वन,
On in one, the screen is made sensitive to touch, and the exact position is detected. And the second technology is, that is, the screen is lined with light emitting devices, that is LED, on its vertical sides, and photo detectors are placed on the horizontal side. So ये दो अलग अलग टेक्नोलॉजी बना यूज करके टच स्क्रीन बनाए जाते हैं. ओके. आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसके कि टच स्क्रीन कैसे बनता है. जस्ट कीप इन माइंड टू टेक्नोलॉजीज आर देयर एग्जिस्ट फॉर टच स्क्रीन. ओके. जिसमें से मोस्टली what we use is, that is, the screen made up of sensitive to touch and exact position is detected. So उसके लिए उसका ही यूज करके बनाया जाता है. नेक्स्ट वन, वी विल टॉक अबाउट द स्कैनर. अभी ये स्कैनर भी सबको मालूम है. नाउ व्हाट हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं. हर एक के आजकल के मोबाइल फोन में एक स्कैनर होता है. एंड इन दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक 1 year, वी ऑल कम टू नो how to scan the, that is, QR code and do the payment. So बहुत सारे applications है जहाँ पे भी daily used to do the scanning. So it is considered as a input device. So it is used for optically scan images, printed text, handwriting or an object, and converts it into digital form. So this is the usefulness of the scanner. And the last one, last नहीं और एक दो है. As you can see, camera is also considered as the input device. अब कैमरा के बारे में क्या ही बोलना आपको, सब तो आप जानते ही हो. जस्ट द थिंग इज, टू टाइप्स ऑफ कैमरा वी नॉर्मली यूज. वन इज, अब याद रखो, टू टाइप्स ऑफ कैमरा हम लोग मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो कीप इन माइंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कैमरा. ओके, एज पर द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू. सो प्लीज डोंट राइट द आंसर. अगर किसी ने पूछा कि कौन से टाइप्स के कैमरा है, तो ऐसे मत बोलना कि फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा, प्लीज. ओके. नहीं तो सेल्फी, क्या यूज है कैमरे का, तो सेल्फी लेने के लिए, ऐसे मत बोलना. ओके. हमें थोड़ा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से और जो एक्चुअल उसका यूजफुलनेस है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है. सो कीप इन माइंड, यस आपका आंसर करेक्ट है, आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट स्टिल give the answers as per the requirement. Okay. सो कैमरा बेसिकली, एक तो हम डिजिटल कैमरा जो यूज करते हैं मोबाइल फोन्स के थ्रू, या फिर जो डिजिटल कैमरा अपने घर पे होता है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिजिटल. अभी पुराने वाले कैमरा तो चले गए, अभी तो वो आपको दिखाई भी नहीं देगा. बहुत रेयरली आप देख सकते हो जिसमें, इफ यू रिमेम्बर, सेल डाले जाते थे, रोल, जो कैमरा का रोल होता था वो रोल डाला जाता था, एंड देन फिर एक एक फ्लैश करके एक एक फोटो खींचा जाता था. अब वो जमाना चला गया. वो रोल वाला जो कैमरा था, ओल्डर वाला, वो अभी मिलता नहीं है या ज्यादा यूज में नहीं है. सो nowadays we all use digital cameras, then webcam. Yes, these are the two types of cameras we normally use. And ये डिजिटल ये नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज इट स्टोर्स द डिजिटल इमेजेस टू द मेमोरी. सो यहाँ पे हम डिजिटल इमेजेस स्टोर करते हैं, मेमोरी कार्ड होता है. ऐसे नहीं है, पुराने जो कैमरास थे उनमें वी यूज टू टेक पिक्चर्स, फोटोज ऑन दैट रोल, एंड फिर वो रोल दैट इज नेगेटिव. सो वही रोल हम लोग फिर देते थे टू डेवलपर्स. डेवलपर्स मतलब कौन से, जो फोटोज का एल्बम बनाते हैं उनको देते थे स्टूडियो में जाके. फिर वो उसको उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके, वो आपने देखा रहेगा बहुत सारे मूवीज में वगैरह, वो नेगेटिव का फिर कैसे फोटो बनते हैं वगैरह. तो वो उसके डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं, बट इट वाज टू लेंदी टास्क, बहुत बड़ा प्रोसीजर होता था. नाउ डेज डिजिटल कैमरा आने से एक तो क्वालिटी ऑफ द इमेजेस और क्वालिटी ऑफ द पिक्स इज इम्प्रूव्ड. ठीक है. देन बिकॉज द इमेजेस आर डिजिटल इमेजेस, सो इट कैन बी इजीली स्टोर टू द मेमोरी कार्ड, एंड मेमोरी कार्ड जो है, that is the portable device, so you can easily transfer the data from one computer to another computer. So ये भी बहुत सारे चीजें चेंज होती गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली जो ओल्डर टाइप ऑफ जो कैमरा का जो यूज था, ओल्डर टाइप के कैमरा का, वो रिस्ट्रिक्ट होते गया. एंड आजकल के ज़माने में आप देखोगे तो ज़्यादातर
डिजिटल कैमरा ही यूज किया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैमरा। नेक्स्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है हम सबके लिए, दैट इज अबाउट द माइक्रोफोन। ओके, सो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के साथ आप व्हाट वी कैन कॉल इट एज, अभी माइक्रोफोन दैट इज माइक बोलते हैं हम, या स्पीच रिकॉग्निशन बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए इनपुट डिवाइस। सो इसका यूज क्या है? ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, माइक के थ्रू वॉट एवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, तो वो माइक का यूज करके ही आपकी तरफ आ रहा है। दैट मीन्स फॉर मी दिस पर्टिकुलर हेडफोन विच इज हैविंग द माइक will act as the input device for me, and for you whatever you are listening, तो वो हेडफोन के थ्रू आप सुन रहे हो, तो दैट हेडफोन will be as output device for you. I think you are getting my point. सेम देखो, दोनों हम लोग हेडफोन यूज कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन, या फिर आप डायरेक्टली आपके लैपटॉप पे आप सुन रहे हो लेक्चर। सो नाउ फॉर मी ये हेडफोन अलोंग विद द माइक, ये माइक जो है, ये माइक विल एक्ट एज अ इनपुट डिवाइस। एंड नेक्स्ट वन, आप जब सुन रहे हो, मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ जो आप सुन रहे हो, मे बी आप हेडफोन के थ्रू सुनते रहोगे या डायरेक्टली आपके लैपटॉप के स्पीकर के थ्रू सुनते रहोगे। सो इन दैट पर्टिकुलर केस फॉर यू गाइज, स्पीकर एंड दैट हेडफोन विल बी कंसिडर्ड एज output device. Why? Because you are getting your output from those devices. So that's why those devices are known as output device. Now, definitely, whenever microphone, speakers, speech recognition devices are there, one more thing is required inside the computer. And ये हमने last इसमें देखा था, that is known as a sound card. साउंड कार्ड नहीं रहेगा आपके डिवाइस में, आपके सीपीयू में, then you cannot use the multimedia in your computer. So sound is often used in multimedia, and even some of the ActiveX, DirectX भी लगते हैं साउंड या म्यूजिक, ये सब यूज अगर आपको करना है प्रॉपरली कंप्यूटर पे। सो दीज पर्टिकुलर सम ऑफ द हार्डवेयर दैट इज साउंड कार्ड एंड सम सॉफ्टवेयर आल्सो नीडेड। उसके अलावा आप साउंड मतलब जो भी म्यूजिक एंड ऑल जो भी है वो आप सुन नहीं पाओगे। ओके, एंड द लास्ट इनपुट डिवाइस वी विल टॉक अबाउट, दैट इज अबाउट द टैबलेट्स। नाउ इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इनपुट डिवाइस। सो इट इज यूज टू इनपुट hand draw images, so graphics, even the handwritten signatures into computer. So आजकल ये जो टेक सेवी पीपल है, जो जहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए जिनको इंटरेस्ट होता है, वो आजकल ये डिजिटाइजिंग टैब्स यूज़ करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, आपको ये भी मालूम है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट व्हाट वी कैन से, आप देखो छोटे छोटे शॉप में जाओ, वहाँ पे आपको जब भी आप शॉपिंग करते हो तो व्हाट यू डू, तो वहाँ पे आपको बिल मिलता है ना। कहाँ कहाँ पे आपको हैंड रिटन बिल मिलता है, कहाँ पे आपको कंप्यूटराइज बिल मिलता है। सो इट इज़ लाइक कि बहुत सारे जगह पे देखो, अभी ये तो ये स्पेशली जो डिजिटाइजिंग टैबलेट्स जो है, इनका नॉर्मली यूज़ किया जाता है हैंड रिटन सिग्नेचर्स देने के लिए, या फिर वो भी डिजिटल सिग्नेचर्स एंड ग्राफिक्स, या फिर हैंड ड्रॉ अगर इमेजेस आपको, तो यहाँ पे एनिमेशन एंड ऑल है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो ग्राफिकल टैबलेट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली अ फ्लैट सरफेस अपॉन विच द यूजर में ड्रॉ। अब ये आपने ना एक्सपीरियंस किया रहेगा आजकल के ज़माने में, तो आई डोंट नो इफ एनीवन हैव द सच टाइप ऑफ मोबाइल फोन, बट आपने सुना तो रहेगा या फिर कभी देखा रहेगा कि पहले ना ये स्मार्ट फोन्स जो आते थे, उसमें एक टाइप आता था मोबाइल फोन्स का, जहाँ पे आपको ना पेन मिलता था। सो टच स्क्रीन के लिए आपको हाथ से करने की जरूरत नहीं, उसके लिए ना उसके साथ टच पेन मिलता था। सो वो पेन का यूज करके वी यूज टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, मतलब जो भी करना है वो। ये नॉर्मली ना नोकिया वगैरह ऐसे जो स्मार्टफोन्स उन्होंने बनाए थे ना, उसमें बहुत ज़्यादा मिलता था। आजकल के ज़माने में आई डोंट नो कि हाँ माइक्रोमैक्स में भी है, बट आई डोंट नो आजकल के ज़माने में इसका यूज़ होता है कि नहीं। आजकल तो मुझे नहीं लगता रहेगा, बट दोज दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज एज सेम एज डिजिटाइजिंग टैबलेट।
सो यू कैन कंसिडर दैट कंसेप्ट एज ए, बट वो टैबलेट नहीं, ऑब्वियसली हम मोबाइल फोन के थ्रू कर रहे हैं तो वो टैबलेट्स रहते थे। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस वी हैव सीन। आई गेस आपको समझा रहेगा। बहुत सारे डिवाइसेस देखे, इसमें से 5 to 6 डिवाइसेस तो एटलीस्ट आप प्रिपेयर करके रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जॉयस्टिक, जो इजी लगता है आपको, जो आप लिख पाओगे तो वो आप कर लो। touch screen is there, then scanner, camera, microphone, and tablet. So all these particular things we have covered till now. Now we will see some of the direct data entry devices, क्योंकि वो भी कुछ ऐसे devices है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, and these particular devices are also considered as the input devices, because as you can see यहाँ पे नाम ही दिया है डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस। दैट मीन्स इनका यूज करके आप डायरेक्टली क्या ले रहे हो, डेटा को एंटर कर रहे हो या डेटा इनपुट दे रहे हो। दैट मीन्स these particular devices are also considered as somewhere around input as well as for somewhere it can be considered as the output device। अब उसमें से सबसे पहला है दैट इज अबाउट द MICR, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। Now, MICR employs a system of printed characters which are easily readable by human beings as well as by machine reader. Now, these are the special printing font to represent some of the character. So, ये जो है ये ink character recognition है, कौन सा character आपने print किया है, so that particular character will be recognized by this particular device. So, the characters are printed in using some special ink which contains magnetic material। एंड यहाँ पे ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है ना, यही आपको हेल्प करेगा while doing the scanning, so the data printed at the bottom of the check are recorded in MICR form। this is the best example। आपके घर पे आपके मम्मी डैडी का चेकबुक रहेगा, उस चेकबुक में आप क्या करोगे, आप सिर्फ उनको मांग लेना कि मुझे चेकबुक देखना है, एक चेक देखना है, एंड वहां पे जो नीचे जो चेक पे इंफॉर्मेशन प्रिंट किया जाता है, दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन MICR फॉर्म। सो मेनी टाइम्स यू कैन सी इट रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच, अकाउंट टाइप, इवन नंबर एक वहां पे होता है। सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज रिकॉर्डेड यूजिंग MICR। ये याद रखो, बेस्ट एग्जांपल है। सो व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, an operator uses an offline encoding machine to encode the amount on the check's bottom right side। ओके, तो वहाँ पे मशीन का यूज किया जाता है। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग्स वी डोंट नो बेसिकली, क्योंकि हम लोग चेक देख के, आजकल तो ड्रॉप बॉक्स होता है चेक का, सो वी डोंट नो व्हाट दे डू एग्जैक्टली। बट यस, कीप इन माइंड, चेकबुक पे जो भी नीचे लिखा रहता है बॉटम पे, that is done by using MICR। so this particular thing you can remember। next point is that is about OCR। अब OCR, OMR, BCR, ये बहुत सारी चीजें आपने बहुत से बार देखे भी रहेंगे। so OCR can read printed or type or even handwritten documents। so it can read upper case और lower case alphabets, numbers। तो ये नॉर्मली जो भी आपके डिजिटल डेटा होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको रीड करने के लिए आप OCR यूज करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे स्कैनिंग करते हैं ना हम नॉर्मली, तो वहाँ पे स्कैनिंग में ये OCR मशीन यूज किया जाता है। अब OMR, ये तो आप सबको मालूम रहेगा। OMR दैट इज इट इज कॉमनली यूज मेथड फॉर स्कोरिंग टेस्ट। तो आपके आपने सुना रहेगा 10th और टेस्ट, 10th का एग्जाम में या 12th के एग्जाम में, या जब उसका आपका ये होता है एंट्रेंस एग्जाम एंड ऑल होता है, तो बोलते हैं ना हमेशा, आपने ये 2-3 दिनों में भी सुना रहेगा न्यूज पे, OMR शीट पे एग्जाम लेने वाले हैं। सो दिस इज बेसिकली यूज मेथड फॉर स्कोरिंग टेस्ट और एंटरिंग डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। नाउ हियर कैरेक्टर्स नीड टू बी मार्क इन अ स्पेशल मैनर, एंड फिर उसको स्कैन करके वो OMR के थ्रू ही उसको रीड किया जाता है। सो इट गिव्स द यूनिक ID टू ईच मार्कशीट। एंड हेंस अगर देखो मार्कशीट हम नॉर्मल वाले यूज करेंगे तो किसी का भी आपने रिप्लेस कर दिया एंड उसके ऊपर आपका रोल नंबर डाल दिया तो खत्म हो गया बात, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बट ये OMR जो है उसका यूज करके व्हाट यू कैन डू इज
हर एक OMR मार्कशीट जो होता है वो यूनिक होता है, हर एक को एक यूनिक आईडी, वो भी हिडन आईडी दिया जाता है, एंड वो स्कैनर के थ्रू ही आप चेक कर सकते हो. सो बेसिकली बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ फीचर्स it can be used for that purposes such as exam forms and all. उसके लिए normally ये use किया जाता है. And the next one is that is about BCR. BCR, that is bar code reader. ये तो आप सब जगह पे देखते हो, किसी भी शॉप में जाओ आजकल, आप जो भी परचेस करते हो तो उस प्रोडक्ट पे आपने देखा रहेगा बार कोड होता है ना. ना प्राइस तो होता ही है लेकिन बार कोड भी होता है. सो आजकल कोई मैन्युअली वो कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसका कितना कॉस्ट है, वो कंप्यूटर पे टाइप नहीं करते बैठते. व्हाट दे डू, उनके हाथ में देखो एक ये रहता है, लेजर, दैट इज लाइट आने वाला एक डिवाइस होता है. सो दैट इज नोन एज अ बारकोड रीडर. ओके, इफ आई हैव द डायग्राम आई विल शो यू दैट पार्ट. जस्ट लेट मी चेक इसमें है क्या. नो, आई डोंट थिंक इसमें है. ओके, सो लेट इट बी. आपको तो सबको मालूम ही है क्योंकि आप सबने वो देखा भी है. सो बारकोड रीडर में वो जो जिससे लाइट आता रहता है उससे स्कैन किया जाता है बारकोड को. एंड बारकोड इज बेसिकली बारकोड इमेज विच इज कन्वर्टेड इनटू नंबर्स, एंड दैट पर्टिकुलर उसके अंदर एक वैल्यू छुपा होता है. ठीक है. सो वो बारकोड कन्वर्टर, सॉरी, रीडर जो होता है, दैट इज BCR. That BCR helps to convert that barcode image into number and then feeds that number into computer as it has been typed from the keyboard. सो ये एज ए इनपुट डिवाइस यूज किया जाता है. ये आपने सब जगह पे शॉपिंग के वक्त जब आप पेमेंट करने जाते हो तब आपने ये सब कुछ देखा रहेगा. ओके, so this is also considered as one of the most important data entry device. Okay, and the last one, that is about the smart card. कार्ड के बारे में भी आपको मालूम है. क्रेडिट कार्ड होने दो, आपका डेबिट कार्ड होने दो, तो ये सब कार्ड आजकल क्या है, so they are basically used to give the input, no, इंस्टेड ऑफ कैरिंग द मनी. व्हाट डू यू डू, आप आपके कार्ड से पे करते हो, तो वहाँ पे भी क्या होता है, कार्ड को स्वैप करने के बाद आप यू कैन इजीली पे द मनी. सो स्मार्ट कार्ड आर सिमिलर टू द क्रेडिट कार्ड इन साइज एंड शेप, बट दे कंटेन अ माइक्रो प्रोसेसर चिप. अब ये आप डेबिट कार्ड में भी देख सकते हो, एक फिल्म होता है ऊपर, मैग्नेटिक फिल्म. ठीक है. सिमिलरली ऐसे ही स्मार्ट कार्ड भी होते हैं जहाँ पे एक चिप होता है एंड उस चिप के अंदर सब इंफॉर्मेशन होता है. ये स्मार्ट कार्ड कहाँ पे यूज किया जाता है बेसिकली, नाउ आई विल टेल यू. आपको भी नहीं, आपको आई डोंट थिंक आपको मालूम रहेगा बिकॉज आप कॉलेज में, अपने कॉलेज में तो आप गए हो, बट आपको कॉलेज में वो ये मालूम नहीं रहेगा. एज सब लोग कॉलेज में तो गए ही रहेंगे, तो वहाँ पे अपने गेट पे एंट्री का एक ये है. ठीक है, आपने देखा रहेगा सबने, कॉलेज में एंटर करने के लिए आपको वो गेट का जो चार अलग अलग ये है वो सबने देखा रहेगा. ये एम आई राइट. ओके, तो वहाँ पे आपने देखा रहेगा कि वो सब अभी तो सब फिलहाल सब खुले हैं, लेकिन जब वो क्लोज होता है तो विद द हेल्प ऑफ आई कार्ड यू नीड टू ओपन इट. तो आप जब आई कार्ड, वहाँ पे ऊपर आपने देखा रहेगा, वहाँ पे दो स्कैनर्स है, हर जगह पे दो दो स्कैनर्स है, एक इनकमिंग के लिए एक आउटगोइंग के लिए. तो जब आप अंदर आते हो तो यू नीड टू प्लेस योर आई कार्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्कैनर. तो आपके आई कार्ड को स्कैन करके फिर अंदर, स्कैन मीन्स वो एक टाइप का रीडर है, दैट इज स्मार्ट कार्ड रीडर. तो आपका कार्ड जो होता है, आपका आई कार्ड, वो डिजिटल कार्ड होता है. सो उसके अंदर एक चिप होता है, मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, एंड फिर वो रीड किया जाता है. इफ इट इज वैलिड देन ओनली वो ओपन होगा एंड आप अंदर एंटर कर पाओगे. ओके, एंड सेम गोज फॉर जब आप घर पे जाते हो तभी भी आपको वो पहले आपका कार्ड आपको पंच करना है. पंच करना है मतलब स्कैन हो जाएगा, वो करेक्टली स्कैन होगा तो आपको एंट्री मिलेगा बाहर. सो दिस इज द वे वी यूज टू यूज दिस स्मार्ट कार्ड का टेक्निक. आई होप ये भी आपको समझा रहेगा. यस, सो यहाँ तक समझा सबको, बोलो जल्दी. ओके, चलो. So now we will go to the next part.
अब इनपुट डिवाइस हो गया अपना, डेटा एंट्री डिवाइसेस हो गया. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज अबाउट आउटपुट डिवाइसेस. अब ये आउटपुट डिवाइसेस भी ऑलमोस्ट ये लास्ट लास्ट टॉपिक है अपना सेकेंड चैप्टर का. अब आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी आप सबको मालूम है, मल्टीपल आउटपुट डिवाइसेस आर देयर. उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस जो है, दैट पर्टिकुलर डिवाइस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. So computer basically provides the result of processed data on output device, and if the output is displayed on the monitor, it is called as a soft copy. याद रखो, जब हम मॉनिटर पे कुछ भी आउटपुट देखते हैं, so that is considered as a soft copy. If it is printed on paper, then it is known as a hard copy. क्योंकि आजकल ये वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं कि इसका सॉफ्ट कॉपी मुझे सबमिट करना, इसका हार्ड कॉपी लेके आओ, ऐसे बोला जाता है. तो यू शुड नो. सो याद रखो, जब हम कोई भी चीज जब हम कंप्यूटर पे मॉनिटर पे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, दैट इज नोन एज अ सॉफ्ट कॉपी. जब उसी को हम प्रिंट करते हैं ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, तो उस पेपर पे जो प्रिंट किया है ना, उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी. एंड इफ इट इज सेंड इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब आप देखो मैसेज सेंड करते हो वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल, या जी में आप मेल सेंड करते हो, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो डॉक्यूमेंट आपने मेल के थ्रू सेंड किया है, देन इट इज नोन एज डिजिटल कॉपी. सो आई होप ये तीन टाइप्स जो है वो आपको समझे रहेंगे. ओके, एक है आपका सॉफ्ट कॉपी, सेकेंड है आपका हार्ड कॉपी, एंड थर्ड वन इज digital copy. Yes, getting this point? Okay. Now if we talk about, अब सबसे ज़्यादा जब भी हम when we talk about the output devices, सबसे ज़्यादा यूज होता है मॉनिटर का, बिकॉज मॉनिटर्स जो है वो सबसे पहले से बहुत सालों से यूज किए जा रहे हैं. सो मॉनिटर्स आर इन्वेंटेड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो 1897, कार्ल ब्राउन. So computer monitor or computer display is basically a electronic visual display for the computers, and this is the device that shows pictures for computers. अब यहाँ पे तीन टाइप्स के मॉनिटर होते हैं जो हमको सबको मालूम रहेगा. जो पहले वाला है वो आप पुराने वाले यहाँ पे जाके, जहाँ पे डब्बा डब्बा बोलते हैं हम लोग इसको, डब्बा मॉनिटर. क्यों? क्योंकि वो डब्बे जैसा दिखता है इसलिए. तो आजकल के टीवी तो ऐसे नहीं होते, बट यस आज भी आप बहुत सारे जगह पे जाओगे तो यू विल सी, ये फर्स्ट वाला जो दिख रहा है ना आपको इमेज में, तो यू विल सी सच टाइप ऑफ मॉनिटर, एंड दोस पर्टिकुलर मॉनिटर्स आर नोन एज CRT मॉनिटर, दैट इज कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर. अब इसमें कैथोड रे का यूज होता है, इसीलिए इसका साइज जो है ना वो थोड़ा बड़ा होता है. बहुत सारे अलग अलग पेरिफेरल्स यूज करके इसको बनाया जाता है, एंड दैट्स व्हाई आपने किसी किसी ने देखा भी रहेगा. अब सबके घर पे आजकल तो LED LCD मॉनिटर्स या टीवीज होते हैं, बट आज भी बहुत सारे है जिनके घर पे डब्बा टीवी बोलते हैं. डब्बा मतलब क्योंकि उनको स्पेस ज़्यादा लगता है, बॉक्स के जैसा दिखाई देता है वो. ओके, सो दैट दोज पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉनिटर्स आर CRT मॉनिटर. ओके, आज भी आप अपने कॉलेज में भी आओगे तो जब भी हम नॉर्मली कंप्यूटर्स लेते हैं तो उसके साथ बहुत सारी जगह पे आपको CRT मॉनिटर आज भी देखने मिलेंगे. बट नाउअडेज पीपल आर प्रेफरिंग टू यूज LCD एंड LED मॉनिटर, क्योंकि फ्लैट स्क्रीन होता है, स्पेस भी कम लगता है, एंड फॉर दैट रीजन दे यूज टू यूज दिस टाइप ऑफ मॉनिटर. सो LCD, that is low power display technology, where rod shaped crystal molecules change their orientation when an electrical current flows through it. So ये LCD जो है ये क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज करके आपको स्क्रीन पे इमेज और डिस्प्ले दिखाता है. एंड LED जो है दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड. सो यहाँ पे LEDs का यूज करके आपको डिस्प्ले किया, वीडियो डिस्प्ले किया जाता है. ओके, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर अवेलेबल, एंड आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा LCD एंड LED ही यूज होता है. Next one we will talk about the printer. As you can see, printer was invented by
John Gutenberg. So in computing, a printer is a peripheral which makes the persistent human readable representation of graphic or text on paper. जो प्रिंट करता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, प्रिंटर क्या है? जो प्रिंट करके देता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको, रीडेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉफ्ट कॉपी जो आपको दिख रहा है उसको प्रिंट करके जो देगा ऑन पेपर, दैट इज नोन एज, जो डिवाइस प्रिंट करके देता है दैट इज नोन एज अ प्रिंटर। ओके, इसके लिए और ज्यादा आपको ये करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब प्रिंटर में भी बहुत सारे टाइप्स है। अब बेसिकली प्रिंटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक आता है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड दूसरा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एंड फर्दर इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टाइप्स, कि इम्पैक्ट में और दो तीन टाइप्स आते हैं, नॉन इम्पैक्ट में तीन चार टाइप्स आते हैं। सो यू कैन सी हियर, इम्पैक्ट प्रिंटर मेक कॉन्टैक्ट विद द पेपर एंड दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन इम्पैक्ट। तो वो वहां पे जब प्रिंटिंग होता है ना, तो प्रिंटिंग का हेड होता है, तो वो प्रिंटिंग हेड जो है ना, वो उस पेपर, जो पेपर आप डालते हो प्रिंटिंग के लिए, तो उसके ऊपर कांटेक्ट जब होता है, तो ऐसे प्रिंटर्स को हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। एंड एज ए नेम सजेस्ट, इम्पैक्ट मतलब इसका प्रिंटिंग होते वक्त ना आवाज आएगा, दाड़ 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 ऐसा आवाज आते रहेगा, इतना भी जोर से नहीं आता। बट आपने कभी कुछ ऐसे प्रिंटर्स, या कभी आप गवर्नमेंट ऑफिसेस में अगर गए रहोगे, तो या गवर्नमेंट व्हाट वी कैन से हॉस्पिटल्स वगैरह, वहाँ पे ना आपको ऐसे पुराने वाले प्रिंटर्स आपने देखे रहेंगे, जहाँ पे प्रिंटिंग चालू रहता है एंड आपको ना कंटिन्यूसली ना कुछ आवाज आते रहता है उस प्रिंटर में से। सच टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर इम्पैक्ट प्रिंटर। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज डॉट मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पे होता क्या है, क्यों आता है? सो इट यूजुअली फॉर्म्स द प्रिंट इमेज बाय प्रेसिंग एन इंक रिबन। एक वहाँ पे रिबन होता है। अब यहाँ पे आपको मैं नहीं दिखा सकता सब कुछ, आपको ना फिजिकली अगर ये दिखाता था ना तो आपको बहुत इजीली समझता था, बट यस अभी कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। सो यू कैन सी कि यहाँ पे यूजुअली प्रिंटिंग कैसे होता है, तो वट एवर द इमेज यू नीड टू प्रिंट, तो वहाँ पे ना एक रिबन होता है, इंक रिबन, एंड उस रिबन पे वो एक हेड होता है, प्रिंटिंग हेड, उसको हैमर और पिन बोलते हैं। वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर हैमर किया जाता है एंड उसके पीछे होता है पेपर। तो जब जब वो हैमर या पिन उसके ऊपर इंक जो रिबन है उसके ऊपर वो गिरेगा, तो उसके पीछे जो पेपर है उसके ऊपर प्रिंट होगा, प्रिंटिंग चालू हो जाएगा। वैसे जो भी टेक्स्ट है या इमेज का जो भी है पार्ट, तो वो प्रिंट होते रहेगा, बट उसमें आवाज आते रहता है, टाक 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 ऐसे आवाज आते रहता है। सो दैट सो व्हाई दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर नोन एज द इम्पैक्ट प्रिंटर। Next type is that is about the thermal printer, sorry, non-impact printer. So non-impact, as the name suggests, it do not use the striking device to produce characters on the paper. यहाँ पे कोई भी आवाज नहीं आता, स्मूथली सब प्रिंटिंग होता है, बिकॉज these type of printers do not use hammer, दे यूज अदर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हैमर नहीं होता। तो कैसे कौन से हैं? तो आजकल के ज़माने में हम लोग यूज़ करते हैं ना, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, देन थर्मल प्रिंटर्स आर आल्सो देयर। सो दीज टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर देयर, जिनका हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। आज के ज़माने में आपको सब जगह पे जाओगे तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही मिलेंगे। And the last one, as you can see, output audio input device. Just wait, guys. Just wait. Okay. Just wait. Okay, so you can see on the screen some of the audio output devices they are given, that is speaker, headphone, sound card. So all this particular thing we have seen. Even this is also one of the output device we can consider, that is projector. Yes. अब ये अगर हम कॉलेज में होते तो इसका यूज आपने देखा होता
क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स मैंने प्रोजेक्टर पे लिए होते. सो प्रोजेक्टर वाज बेसिकली इन्वेंटेड बाय चार्ल्स जेनकिंस. So it is an optical device that projects an image onto the surface or commonly a projection screen. तो कोई भी surface पे या projection screen पे if you want to just project an image or anything, screen of the computer also you can directly project. So that's why we use this type of device that is known as a projector. So yes, these are some of the devices we should study. We should know. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है दैट इज मल्टीपल डिवाइसेस वी यूज, क्योंकि कंप्यूटर व्हेन इट कम्स टू द कंप्यूटर का जब आप यूज करते हो ना, तो उसमें होता क्या है, बहुत सारे डिवाइसेस का कंट्रीब्यूशन होता है. कंप्यूटर इज नॉट अ सिंगल डिवाइस. उसमें इनपुट डिवाइस आते हैं, उसमें हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस आर आल्सो देयर. जस्ट यू कैन सी कि आपके आउटपुट डिवाइसेस, इवन उसके साथ सम ऑफ द डेटा एंट्री डिवाइसेस आर आल्सो देयर. नाउ आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर्स आर देयर. अब प्रिंटर्स में भी हर एक का अलग अलग ये है, कैरेक्टरिस्टिक है कि इम्पैक्ट प्रिंटर इज देयर, नॉन इम्पैक्ट इज देयर. इम्पैक्ट के अंदर dot matrix printer is there, Desivel printer is there, then line printer. नॉन इम्पैक्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो इंकजेट प्रिंटर, जहाँ पे इंक का यूज किया जाता है, इंक से नोजल होते हैं. लेजर प्रिंटर, तो लेजर का यूज करके प्रिंटिंग किया जाता है. तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस का यूज किया जाता है. एंड तब जाके आप कंप्यूटर पे इफ यू वांट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, देन वो पर्टिकुलर टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो. ओके. Even along with these particular devices, one more is there, that is data storage. तो डेटा को स्टोर करने के लिए भी मल्टीपल डिवाइसेस वी यूज, एंड दोज पर्टिकुलर स्टोर्ड डेटा वी नीड टू मैनेज आल्सो. सो आई होप कि ये जो टॉपिक था जिसमें हमने बहुत सारे पेरिफेरल्स एंड कंपोनेंट्स देखे, इंक्लूडिंग सम ऑफ द दैट इज एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड डिजिटल that is data entry devices and so on. So I hope so आपको ये जितने भी कंपोनेंट्स हमने देखे वो आपको समझे रहेंगे. तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू गाइज, ये फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर जो है इसका मैंने नोट्स डाल दिया रहेगा. ठीक है, मैं आज चेक करूंगा. फर्स्ट का तो मैंने ऑब्वियसली डाला है, सेकेंड का आई नीड टू चेक. सो व्हाट यू गाइज नीड टू डू इज फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का जो टेक्स्ट बुक का स्कैन कॉपी है, जो आपको अभी सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा था, यस दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ऐसे फर्स्ट चैप्टर का भी डाला है, सेकेंड का भी देखो डाला रहेगा, तो उसको आपको प्रिपेयर करना है. स्टार्ट स्टडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर फर्स्ट टू चैप्टर्स. ओके. एंड इसके ऊपर हम फ्राइडे को टेस्ट लेने वाले हैं. स्मॉल टेस्ट विल बी देयर, एमसीक्यू वाला टेस्ट रहेगा. ठीक है, 10 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड इसी में से रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया फर्स्ट चैप्टर के एंड में भी देखो फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल है, तो वहां पे प्रिपेयर करो. बट ऐसे जरूरी नहीं कि उसमें से ही मैं डालूंगा. सो यू नीड टू प्रिपेयर. ठीक है, तो 2 चैप्टर्स जो है वो प्रिपेयर करो प्रॉपरली, उसके ऊपर आपको टेस्ट रहेगा. एम आई क्लियर? ओके चलो. सो वी विल टेक अटेंडेंस क्विकली. टुडेज डेट इज 19. चलो, रोल नंबर 1 2 3 4 5. 1 मिनट है, 1 नहीं है. ओके, डायरेक्टली 4 से स्टार्ट. ओके, 3 है, 4 5 6 7 6 है, 8 9 10 11 12 13 14 9 10 9 10 13. ओके, 14 15 16 17 18 19. सिक्सटीन हो गया, 18 हो गया. चलो आगे 19 20 21 22. ओके, 23 24 25 26 27 28 29
ओके 27 है, 29 है, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 40 को अभी याद आ गया, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 34, 35, ओके 37 हो गया, 38 हो गया, 42 हो गया, 41 हो गया, चलो आगे 43 भी हो गया, चिन्मय 44, 45, 46, 40, ओके चिन्मय इज देयर एंड खुशी है क्या? यस ओके, चलो थैंक यू गाइज।